Very good morning, my dear lovely students. How are you all doing? I hope you all are doing really well. I am also doing great, and I'm your teacher, Dr. Tehseen Fatma, and I am here with another chapter, another lesson of spoken English. I hope you people have at least started speaking few sentences on daily basis. As told, I hope you are trying and you are practicing in the same way as I have told you to at least start with speaking 10 sentences. If you cannot speak to your friend, or you think there is no one to speak with, speak to yourself. Whatever you want to say, speak to yourself, okay? Like, oh, I'm getting late for my class. I have to get ready. I have to do so many things. Come, let's go. Hurry up. Be quick. Be fast. Oh, I have my breakfast. I have my bottle. Let's go. Okay, so you can do like this. So without wasting any more time, let's start with our schedule or our system. That is first the listening skills, and then the reading skills, and then the speaking skills. Okay, so for your reading skills and listening skills, I am back with one more story. I hope you're enjoying the stories, learning the lessons that are taught in those stories, and then following them in your life. Okay, so without wasting any more time, let me start the story. This is the story of about a group of frogs. Okay, so let me start. Some frogs were traveling through woods, and two of them accidentally fell into a pit. The other frogs, which were safe upside, understood how deep the pit was and saw no hope for the frogs to escape out of it. Both of these frogs started trying to get out of the pit, but failed many times. The frogs on the safe side shouted at them to give up the pain of trying, as it was not possible. Eventually, one frog heard the other frogs and decided to stop trying, and fell down to depth. However, the other frog went on trying, and at last managed to reach on the top. The other frogs asked him, "Did you not hear us?" He explained that he was deaf and thought other frogs were encouraging him to get out. So I hope you understood the story, my dear students. And what a beautiful story. Now let me explain to you. Before that, let's hear what is the moral of the story. Some people around you may ask you to be on a safer side always and stop trying and taking risk. However, there is no gain without pain. So try hard to achieve success in life despite what life offers you. इसका अर्थ ये है कि जीवन में हमें हर तरह के लोग मिलेंगे। हो सकता है हमें बहुत प्यार करने वाले, हमारे बहुत ख्याल रखने वाले लोग मिले, जो हमें हमेशा तकलीफ़ों से बचा करके रखने की कोशिश करेंगे। हमेशा वो ये चाहेंगे कि हम परेशान ना हों लाइफ में। लेकिन प्यारे बच्चों, जब तक आप थोड़ी परेशानी अपने जीवन में नहीं लेकर आएंगे, थोड़ा संघर्ष अपने जीवन में नहीं लेकर के आएंगे, आपको कामयाबी का स्वाद चखने को नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये कहानी थी दो मेढकों की। वैसे एक ग्रुप ऑफ मेढकों की थी कहानी ये। हाँ, उनमें से ये दो मेढक थे जो कहीं जा रहे थे, और जाते जाते ये दोनों एक गहरे कुएं में गिर जाते हैं। और जब वो गहरे कुएं में गिर जाते हैं, तो बाकी जो मेढक जो सेफ होते हैं, जो ऊपर होते हैं, वो लोग देखते हैं कि इतना गहरा है ये कुआं, और ये लोग इतने नीचे गिर चुके हैं, तो इनका ऊपर आना तो लगभग नामुमकिन है।
और ये वो देखते हैं कि ये जो मेढक हैं दोनों, ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं ऊपर आने की, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बार बार ऊपर आते हैं फिर नीचे जाते हैं, बार बार ऊपर आते हैं फिर नीचे जाते हैं। तो उन्हें ये एहसास होता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऊपर जो मेढक होते हैं वो उन मेढकों को बोलने लग जाते हैं, रहने दो, बेकार है तुम्हारी कोशिश, तुम लोग वहीं पे रहो जितनी देर रह सकते हो, ऊपर आने की कोशिश मत करो क्योंकि ये नहीं हो सकता है। तो वो सारे चिल्ला रहे होते हैं ऊपर से। एक मेढक उनकी बात सुन करके निराश हो जाता है और वो थक जाता है और वो ये समझ लेता है कि हाँ ये सच में डिफ़िकल्ट है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, और वो अपनी जो कोशिशें हैं उसको वहीं पे स्टॉप कर देता है और कुछ देर के बाद वो गहरे पानी में गिर जाता है और मर जाता है। और वहीं पे दूसरा जो मेढक होता है वो बार बार लगातार कोशिश करते रहता है। लोग उसको डिस्करेज करते रहते हैं, अरे रहने दो, कहाँ परेशान हो रहे हो, तुमको क्या समझ में आ रहा है, इतना ऊपर तुम आ सकते हो, तुम नहीं आ सकते हो। और वो जो है वो लगातार कोशिश करता रहता है और वो ऊपर उठ जाता है और वहां से बाहर निकल जाता है। कि देख करके उसके सभी जो दोस्त होते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं, कहते हैं अरे तुम कैसे ऊपर आ गए, तुमने नहीं सुना, हम लोग तो बोल रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है, ये तुम क्या कोशिश कर रहे हो। तो वो मेढक बोलता है कि उसको तो तभी भी कुछ नहीं समझ में आता है, बट उसको जो भी वो समझ में आता है तो वो उसको बोलता है, समझाने की कोशिश करता है बाकी मेंढकों को कि मैं सुन नहीं सकता हूँ, मुझे लगा कि तुम लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हो, तुम मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो कि तुम कर सकते हो, और उसी जोश के साथ मैंने कोशिश की और मैं बाहर आ गया। तो बच्चों ये देखिए कि ये कई बार हमारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ये भी हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। तो हमको ये समझना है कि हमें इनसे कैसे प्रभावित होना है, किन बातों को सुनना है, किन बातों को नहीं सुनना है। तो अगर आपको कोई डिस्करेज करता है, आपके लक्ष्य में के बीच में वो आता है, बाधा बनता है, तो आप उससे किनारा कर लें और आप उससे दूर हो जाएं, उसे बोलें कि भाई मुझे मेरा लक्ष्य पाना है और उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा, क्योंकि जीवन में देयर इज नो गेन विदाउट एनी पेन। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड गिव योर बेस्ट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द story and reading practice and listening practice। इस कहानी को एक बार सुने, 2 बार सुने, सुन करके देखें कि आपको कितना समझ में आ रहा है, क्या इसमें कोई नए वर्ड्स हैं। अगर कोई नए वर्ड्स हैं तो आप उसको नोट डाउन करें और नोट डाउन कर करके उसके मीनिंग्स को देख लें। चलिए, तो हम बात कर रहे थे, हमने और बात की थी, वर्ब्स की बात की थी और वर्ब्स के बारे में बताया था कि कोई भी आपका जो कम्युनिकेशन है वो बिना वर्ब के पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको बैक करना चाहती हूँ। यस, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे वर्ब्स की, कि वर्ब्स के बिना आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता है। और आपको वर्ब्स की ज़रूरत है। वर्ब्स आप जानते हैं पर आप दिमाग में नहीं रखते हैं। तो अब हम एक ऐसे वर्ब्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे जो हम डेली की अपनी लाइफ में बार बार यूज़ करते हैं, और ऐसे वर्ब्स हैं जिनका हमको ज़रूरत पड़ता ही है। चलिए बच्चों, तो हम इन वर्ब्स को यूज़ करके हम सीखते हैं कि कैसे हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। आप लोगों को पहले से ही मैंने ये बता दिया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जब रूटीन बताया था तब आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया था, और सिंपल प्रेजेंट में हम और कुछ सेंटेंसेस बनाने की अभी कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम अगली जो टेंस है उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि पहला हमारा वर्ब है ईट को लेकर के आपको सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस बनाना है। आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट में आपका सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद आपको वर्ब का पहला फॉर्म या फिर वर्ब का 5वां फॉर्म, ठीक है, यानी V1 या फिर V5।
उसके अलावा आपको आगे जो भी आपको बताना है उसके बारे में, आप उस एक्शन के बारे में जो आप बताना चाहें कि वो कब आपने किया या फिर कहाँ किया, तो आप उसको, दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट, तो आप वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला जो वर्ब है वो है ईट। इट इज़ अ वेरी कॉमन, वेरी कॉमन वर्ब, और इसको यूज़ करके आप बहुत तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिए कैसे आप बता सकते हैं कि आप सिंपल प्रेजेंट है, तो यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो आप हमेशा करते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे आप हमेशा करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आई ईट चपातीज इन माई ब्रेकफास्ट। आई ईट, आई है आपका सब्जेक्ट, ईट है आपका V1 ही आएगा, क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूँ कि V5 किसके साथ लगता है, वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म है वो आपका हमेशा सब्जेक्ट कौन सा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। और वो क्यों लगता है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है, ये इन्हें एस बहुत पसंद है, तो इन्हें जहां पे भी एस होता है या एस की साउंड होती है, SES, तो वो एस की साउंड निकालता है, तो वो उसको चुन लेते हैं। यानी तो V1 में तो एस की आवाज नहीं आती है, लेकिन V5 में आती है। तो जो ये हमारे थर्ड पर्सन हैं, ये लोग क्या चुन लेते हैं, ये लोग V5 को चुनते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आ जाते हैं। आई ईट रोटीज इन माई ब्रेकफास्ट, ये हो सकता है। आई ईट डोसाज ऑन द वीकेंड, ऐसे हो सकता है। और आई ईट डिनर एट 8 o'clock in the evening, ऐसे हो सकता है। आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8 in the morning, ये आप बता सकते हैं। आई टेक लंच इन द आफ्टरनून एट 2 PM, आप इस तरह से बोल सकते हैं। आई लाइक टू ईट दिस, आई लाइक टू ईट दैट, दैट इज ऑल्सो समथिंग जो आपको हमेशा, आपको एक रेगुलर बेसिस पे ये चीजें होती हैं कि आपको वो खाना पसंद है, आप अक्सर उसे खाते हैं, तो आई लाइक टू ईट आप वो भी बोल सकते हैं। आई लाइक टू ईट बिरयानी, आई लाइक टू ईट समोसा, एंड तो इस तरह से आई का हो गया ये। अब उसी तरह से यू ईट यू को आप यूज करके बोल सकते हैं, वहां पे भी आपका V1 ही रहेगा। You eat chapatis, you eat dosa, you eat idli, you eat fruits, you eat and vegetables, fresh vegetables, you eat non-veg, you don't eat non-veg, जो भी है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। ही और शी के बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं शी, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना है, ही ईट्स breakfast at 9 AM, she eats dinner at 9 PM, and my friend eats loves to eat, ये भी आप बोल सकते हैं loves to eat। loves में अब ये भी एक वर्ब है, और यहाँ पे आपने s दे दिया है, एक बार s हो गया तो बस ठीक है जी, इतना काफी है। एक सेंटेंस में आपके दो वर्ब्स भी हो सकते हैं, जैसे loves to eat something है ना, तो loves to eat fruit, loves to eat ice cream, ठीक है। तो उसी तरह से आप ड्रिंक का सेंटेंस बना सकते हैं। I always drink a lot of water, आपने यहाँ पे ड्रिंक के पहले आपने फ्रीक्वेंसी को भी बता दिया। ये क्या है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये बताती है कि आप ये जो वर्ब है, ये जो एक्शन है, इसको आप कितनी बार करते हैं, ये कब कब होता है ना। जैसे कि आपने बताया आई ईट ब्रेकफास्ट एट, वहाँ पे आपने टाइम बताया, ठीक है। लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है तो वो नॉर्मली आपकी हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आती है, ठीक है। जैसे आई ऑलवेज, I always, I never, I sometimes, है ना, I many times, इससे करके सब्जेक्ट के बाद में आपका ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा, I always drink a lot of water, I always drink, drink आपने देखा, ड्रिंक का जो फॉर्म है वो अपने फॉर्म में V1 में ही है, उसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए, है ना। I drink juice, I take cold drinks often, कभी कभी मैं, या आई ऑफन टेक कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसे भी हो सकता है। आई टेक कोल्ड ड्रिंक्स ऑफन, मैं अक्सर खाता हूँ, अक्सर पीता हूँ, ये भी बोल सकते हैं आप। उसी तरह से स्लीप का आपको यूज़ करके आप, तो मैं आपको बच्चों इस वीडियो में, मैं वीडियो के साथ मैं
आपको लिंक में कुछ ऐसे डेली यूज़ के आपको वर्ब्स दे दूंगी और इनके सारे फॉर्म्स भी दे देंगे, यानी V1, V2, V3, V4, V5 भी आपको दे देंगे, और जिसकी मदद से फिर हम इन्हीं वर्ब्स को हम स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे ताकि हम सिंपल सेंटेंसेस को, डेली यूज़ में आने वाले वर्ब्स को यूज़ करके हम लोग अपने सेंटेंस को फॉर्म कर सकें। स्लीप का जैसे मैंने कहा तो आप बोल सकते हैं आई स्लीप एट 10 PM, आई स्लीप वेरी लेट एट नाइट, आप ऐसे बोल सकते हैं। आई ऑलवेज स्लीप, या फिर आप अपने फ्रेंड का बोल सकते माई फ्रेंड लव्स टू स्लीप, my friend sleeps for a very long time, या sleeps till late morning, आप ऐसे बोल सकते हैं, है ना। और वेक का उसी तरह से आप यूज कर सकते हैं, आई वेक अप एट दिस टाइम, माई फ्रेंड वेक्स अप एट दिस टाइम, माई सिस्टर वेक्स अप एट दिस टाइम, आई वेक अप, शी वेक्स अप, ही वेक्स अप, ठीक है। तो V5 का इस्तेमाल। उसी तरह से वॉक है, I go for morning walk, I always walk a long distance, ठीक है। या फिर we should walk in the morning, we should go for walk in the morning, ऐसे हो सकता है। यहाँ पे शुड आ गया, वैसे ये फिर हमारा क्या हो गया, ये तो टेंस चेंज हो गया। चलिए, तो हमें टेंस तो अभी फिलहाल नहीं चेंज करनी है, तो कोशिश करना है हम सिंपल प्रेजेंट में ही हम अपनी बात को कहेंगे। वी रन, आई रन वेरी फास्ट, आई रन वेरी फास्ट, माई फ्रेंड रन्स वेरी स्लो, he runs in the morning, I run in the evening, I run on the treadmill, my friend runs in the gym, कुछ भी आप बोल सकते हैं। टॉक का, we sit and talk a lot in the college या in the college canteen, I like to talk too much, my friend talks too much, she talks too much, she likes to talk, like सब में अभी एस लगा दिया तो इसीलिए अब टॉक में एस नहीं लगाया, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बहुत सारे मैं आपको डेली यूज में आने वाले लिसन टू योर टीचर, है ना। ये तो फिर ये आपका ऑर्डर देने वाला सेंटेंस हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो वर्ब्स हैं बेटा, ये डेली यूज़ वाले वर्ब्स हैं। आपको सिंपल प्रेजेंट में आपको जो रूल्स हैं वो भी बता दिए गए हैं, आपने रूटीन अपना बताया था उसको यूज़ करके। तो अब आपको जो ये सारी वर्ब्स हैं इनको यूज़ करके थोड़े से बड़े सेंटेंस बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। आई रीड मैगजीन, आई रीड बुक, आई रीड न्यूज़पेपर, माई फ्रेंड रीड्स कॉमिक, शी रीड्स competition success review, yeah, she reads competitive books, she reads the newspaper, my father reads the newspaper in the evening, in the morning, है ना। तो इस तरह से आपने देखा। I write letter, my friend writes essay, and we write notice, we write long paragraphs for competitive preparations। तो आप कुछ भी आप इसमें ऐड करके आप अपने सेंटेंस को बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। तब तक हम इन्हीं वर्ब्स को यूज़ करके अगली क्लास में हम लोग दूसरे टेंस पर जाएंगे, या फिर हम एक बार इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। स्टडी हार्ड, प्रैक्टिस हार्ड, एंड स्टार्ट स्पीकिंग। सेंड मी योर वीडियोज़, whatever simple sentences you speak, no problem, send me your videos. Thank you very much for your patience, and please do like and subscribe to my channel. Thank you so much.